Hello, Abdiali. Hello. Hello, sir. Yeah, Abdiali, keep your video on. Hello. You're able to listen to me, correct? Yes, sir. Yeah, keep your video switched on. Sir. On here, another video go, okay? Throughout the lecture, Sir. it should be on. In all the lectures, just take care. You keep your video on, okay? Sir. Yeah. Sorry, I could joined in late because I had a meeting. I'm at institute right now. I had a meeting, so I just joined in. Okay, In the sir. last lecture, we had started with microeconomics. Do you remember that? Sir. Yeah. Sir. So I'll just share that PDF. You have the textbook with you. I've Sir. sent it to you. Yes. Yeah, sir. Yeah. Still, I'll share my screen because again, I'll also have a view. Correct? Yeah. Sir. Sure. Just a moment. I'm opening it. Did I send you the economics textbook? नहीं सर. मैंने आपको नहीं भेजा है क्या? नहीं सर. Do you have it with you? हाँ सर. आपके पास है ऑनलाइन टेक्स्टबुक? हाँ. आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन पे? नहीं सर. ऑप्शन नहीं दिखा रहा था सर. Okay, wait. I'll do. Just give me a moment, okay? I have it in my laptop. Today I am having less bandwidth, so I'm operating on phone. Just hold on. हाँ सर. Is the screen visible to you? Yes sir. Okay, chalo. So this is a textbook. I hope you can see the screen, correct? हाँ सर. Yeah, just a moment. Yeah, so last lecture we had learned the introduction, correct? हाँ सर. This was introduction that we learned. Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. Microeconomics, the word micro, it was derived from which word? Micro. Micros is a Greek word. Micro. Okay, micro was derived from Greek word micros, and macro was derived from Greek word macros. Correct? Sir. Yeah. Who invented that? A Norwegian economist, Ragnar Frisch. Yeah. So this we had learned in our last session. Then we learned this thing, meaning of microeconomics. Correct? That was what we learned. Sir. Yeah. Just a moment. I'm maximizing it. Yeah. This was what we started in our last lecture. Sir. Yeah. Meaning of microeconomics. Micro means a small part of a thing. Microeconomics मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली सब एग्जांपल्स के साथ बताया था. If I am studying about Tata Motors, which economics, micro or macro? Micro. Yeah. If I am studying about the automobile industry, Macro. macro. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सारे आ जाते हैं, करेक्ट? हाँ सर. जितने भी इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, yes or no? हाँ सर. Yes, but when I am specifically studying about Tata Motors, that means I am studying in detail. Microeconomic study is also called microscopic study. क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्कोपिक स्टडी. माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी एकदम ध्यान से. माइक्रोस्कोप किसके लिए हम यूज करते हैं? एकदम डिटेल में देखने के लिए, करेक्ट? डिटेल में. या विच इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, करेक्ट? हाँ सर. Yes. Then we just went through this definition. The definition that was given by Morris Dobb. Yes or no? हाँ सर. ये बोल रहा हूँ मैं. समझ गया.
रेड स्पॉट दिख रहा है आपको? हाँ सर. Yes, Morris Dobb का definition. Microeconomics is in fact a microscopic study of economy. देखो क्या बोल रहा है? Microscopic study of इकोनॉमी. economy. ये सबसे simple and smallest definition है. हाँ, but मैं आपको AP Lerner का definition भी समझाता हूँ. What is Professor AP Lerner saying? Can you read that? Microeconomics consists of looking at the economy through a microscope, as it were, to see how the millions of cells in the body of economy, the individual or household as consumers, and an individual or firms as producers, play the part in working of the whole economy organism. Okay, तो ये definition आपको by heart करना नहीं है. It is also difficult to understand, but still I'll explain it. What AP Lerner is trying to say. He's saying that microeconomics consists मतलब उसमें कुछ चीजें include है ना? हाँ सर. ऐसा हो? हाँ सर. जैसे अभी अपन देखो, when we go to purchase a pack of biscuit, हाँ सर. उसके पीछे देखो ingredients लिखा होता है. हाँ. होता है कि नहीं होता है? हाँ सर. हाँ, ingredients यानी क्या क्या डाल के वो बना है, correct? हाँ. Yes. So when the ingredients are given, मतलब वो चीज ये सब चीजों से बनाया हुआ है, correct? It consists of all that ingredients, correct? हाँ सर. Yes, that biscuit is having all that ingredients. Got it? Consist word का मतलब है ये सब चीजों से बना है. तो microeconomics consists of what? It consists of looking at economy through a microscope. यानी हम कोई भी चीज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना. हाँ सर. अब जल्दी just hold on one minute. Yeah, when we are studying some aspect, any economic problem. For example, if I want to study why attrition is happening in Tata Motors company, Tata attrition का मतलब है employees काम छोड़ के जा रहे हैं. हाँ सर. ओके, तो मैं ये प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहता हूँ बिकॉज ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना. हाँ. अब मैं किसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ? रिप्लाई दो, किसके बारे में स्टडी कर रहा हाँ हूँ? सर. माइक्रो सर. नहीं, मैं कौन सी चीज के बारे में स्टडी कर रहा हूँ? टाटा मोटर्स कंपनी में टाटा. एट्रिशन क्यों हो रहा है, करेक्ट? एट्रिशन. हाँ. यस, एट्रिशन मतलब एम्प्लॉइज कुछ और अच्छे एम्प्लॉय. अपॉर्चुनिटी आने पे यहाँ का जॉब छोड़ के वहां जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं. हाँ. ओके, तो मैं यहाँ पे एकदम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? मैं टाटा मोटर्स, एक बहुत बड़े हाँ सर. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर मैंने टाटा मोटर्स को सेलेक्ट किया. और टाटा हाँ. मोटर्स के अंदर भी मैं कौन से प्रॉब्लम का स्टडी कर रहा हूँ? एट्रिशन का. व्हाई एम्प्लॉइज आर स्विचिंग ओवर टू सम अदर फैक्ट्रीज और फैक्ट्री. कंपनीज. ओके, हाँ. इस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर रहा हूँ. दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ना. मैं एक सर्टेन प्रॉब्लम का मैं डिटेल स्टडी कर रहा हूँ. ऐसा नो? हाँ सर. यस, सो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी. तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were to see how the millions of cells in the body of economy. Okay? हाँ सर. मतलब आपका ह्यूमन बॉडी में एक सेल को अगर मुझे देखना है तो मैं डायरेक्ट देखूं तो मुझे ह्यूमन बॉडी के सेल्स दिखाई देंगे? नहीं. नहीं, उसको मुझे क्या करना होगा? जैसे आप देखो ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, हाँ. आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट करने के बाद वो लोग उस चीज को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, करेक्ट? हाँ. टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद एक मशीन होता है, उसमें से घुमाते हैं, देखा है उसको? हाँ सर. ताकि ब्लड के इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली मिक्स हो. उसके बाद आपने वो ग्लास के स्लाइड देखे हैं क्या आपने? हाँ. कांच के पट्टियां होते हैं, हाँ सर. उसमें थोड़ा खून का बूंद गिरा के फैला देते हैं वो लोग. हाँ. हाँ, फिर ये स्लाइड को वो लोग एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं, है कि नहीं? हाँ. तभी ही वो लोग ब्लड सेल्स देख पाते हैं. कोई वायरल इन्फेक्शन है क्या ब्लड सैंपल्स के अंदर, ये देख पाते हैं. ऐसा नो? हाँ. वही सेम मैनर में एक इकोनॉमी को भी आपको ह्यूमन बॉडी जैसा कंसिडर करना है. और ह्यूमन बॉडी के अंदर का माइन्यूटेस्ट चीज को हम जब खोद खोद के चेक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी. गॉट इट? हाँ सर. यस. द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स. जैसे अभी मैंने ये स्टडी करने को देखा कि मैंने एक प्रोडक्ट लाया मार्केट में, ज्यादा सेल नहीं हो रहा है. हेलो? हाँ सर.
हाँ, सुन रहा मैंने सर। मार्केट में प्रोडक्ट लाया, वो ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, हाँ तो आप बोलो आपने मार्केट में प्रोडक्ट लाया वो ज्यादा सेल नहीं हो रहा, तो आप क्या मेजर लोगे? सर, पहले तो उसका प्राइस थोड़ा कम करूंगा। अगर उसका प्राइस नहीं हाई नहीं, होगा तो उसका ये तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो, आपको कैसे पता कि प्राइस ज्यादा है? हम्म, सर रिव्यूज, क्या बोले लोगों आपने? से रिव्यूज लूंगा सर। रिव्यूज, फीडबैक्स, गॉट इट। हाँ सर। इसके लिए देखो, कभी कभी कस्टमर को कॉल आते हैं कंपनी से, फीडबैक कॉल बोलते हैं ना हम उनको। हाँ सर। जैसे अपने मास्टर्स एडुकेयर से भी कभी कभी हम स्टूडेंट्स को फीडबैक कॉल करते हैं, राइट? हाँ सर। कोई इश्यूज है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कैसा लगा आपको, कुछ इश्यूज है तो बताओ, ऐसा नो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। हाँ सर। तो पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, डाउट्स बताते हैं, ऐसा नो। हाँ सर। बिकॉज हमको भी हमारा प्रोडक्ट क्या है? एडमिशन। हाँ सर। वी हैव टू सेल अवर एडमिशंस टू यू पीपल, करेक्ट? हाँ सर। Yes. So how can we sell our admissions to you? Only when we redress your problems properly. जब आपको वो सब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हमारे क्लासेस से मिल रहा है, only then you will continue with the admission, ना? हाँ। Correct? हाँ सर। And because of you also we will get 2 or 3 more admissions. Word of mouth publicity. जैसे आपका सब आपके कोई कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, योर रिजल्ट्स हाँ विल सर। स्पीक। आपके नेबर्स पूछेंगे, क्लासमेट्स पूछेंगे, यार अब्दुल विच कोचिंग इंस्टीट्यूट यू आर गोइंग इनटू, करेक्ट? सो इफ वी हाँ सर। टेक प्रॉपर फीडबैक्स, वी seal all our problems, then results will surely come, correct? हाँ सर। तो उस हिसाब से समझो आपका एक प्रोडक्ट है, आपने आपका प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट के जैसे समझो, आपने एक शैम्पू बनाया, ओके? हाँ। मार्केट में कई सारे शैम्पू के ब्रांड्स है, सनसिल्क है, हिमालय है, हेड एंड शोल्डर्स है, करेक्ट, क्लिनिक प्लस है, वाटिका है, हाँ सर। so no, there are n number of brands. You also started manufacturing shampoo. आपका भी कोई अच्छा ब्रांड है ऐसा समझ लो, ओके? हाँ। XYZ आपका भी ब्रांड है। अब आपका सेल जो बढ़ना चाहिए उसके कम क्यों हो रहा है? तो आप क्या करोगे? फीडबैक्स लेंगे कस्टमर से, करेक्ट? हाँ सर। कस्टमर से फीडबैक्स लेंगे, ऑफर्स देना शुरू करेंगे, फिर आप हाँ। देखोगे ऑफर्स के ऊपर कस्टमर्स खरीद रहे हैं क्या। तो आपने ये देखा ऑफर्स में कस्टमर खरीद रहा है मेरा प्रोडक्ट, लेकिन डायरेक्ट जब परचेस करने की बात आती है तो ये लोग नहीं खरीद रहे, मतलब आपको आंसर मिल गया कि आपका प्राइस ज्यादा है, राइट? हाँ सर। देखो, आपको घर घर जाके नहीं पूछना है, इतना टाइम भी नहीं है अपने पास, ऐसा नो। हाँ। क्योंकि अपना मेन काम क्या है? अभी आप एक शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोडक्ट आपका मेन बनाना। काम क्या है? शैम्पू बनाना और बेचना, राइट? घर घर जाके फीडबैक लेना ये आपका काम नहीं है, करेक्ट? हाँ सर। नो, बट वो हाँ फीडबैक्स के सर। बिना आपका बिजनेस प्रोग्रेस भी नहीं कर सकता है, करेक्ट? हाँ सर। Yes, so there are certain measures, certain economic techniques which will help you, and that is nothing but microscopic study. छोटे छोटे problems को detail में analyze करना, like you will take feedbacks from the customers, existing customers. You will हाँ सर। keep some offers. अगर offers के ऊपर customer जल्दी खरीद ले रहे हैं, देखो कस्टमर हाँ प्रोडक्ट सर। कब खरीदेगा आप बताओ? क्वालिटी अच्छा है तो खरीदेगा, प्राइस रीजनेबल है तो खरीदेगा, राइट? हाँ। क्वालिटी एंड प्राइस, दिस इज द थिंग। अगर क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्राइस ज्यादा रहेगा तो भी वो लोग खरीदते, राइट? हाँ। हाँ, लेकिन आपका प्राइस बाकी सारे शैम्पूज के जैसे ही है, बट जब से आपका शैम्पू लगाने लगा बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे, टूट रहे, क्वालिटी, करेक्ट? तो यू हैव टू वर्क ऑन हाँ सर। क्वालिटी। आंसर मिल गया, ये फीडबैक है कस्टमर से, हाँ सर। तो यू हैव टू वर्क ऑन क्वालिटी। हाँ, अब कस्टमर बने नहीं, क्वालिटी अच्छा है, प्राइस भी ओके है, लेकिन कुछ और रीजन, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ओके? कस्टमर का एक एक इंस्टिंक्ट से आपको पता चलेगा, और ये इंस्टिंक्ट्स हाँ सर। मिलेंगे कैसे? जब यू डू माइक्रोस्कोपिक स्टडी, गॉट इट? हाँ। यस, सो दैट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, बिकॉज आपको कंज्यूमर के प्रॉब्लम समझने हैं, तभी आप इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर पाओगे, करेक्ट? हाँ सर। या देन नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स और फर्म्स, कंपनीज के भी कोई प्रॉब्लम होते हैं, है कि नहीं? हाँ। जैसा कोई कंपनी है उसको अभी, जैसे नाउ लॉकडाउन फेज इज गोइंग ऑन, करेक्ट?
many of the companies are getting shut down due to cost हाँ सर, that they are incurring. सैलरी सबका चालू है, रेंट पे करना है, मशीनरी का मेंटेनेंस भरना है, लोन चालू है, करेक्ट? हाँ सर, तो what these people do, they try to reduce cost, and to reduce cost they shut down. Shutting down the business is the most easy way, हाँ सर, करेक्ट? हाँ, बट जिनको शट डाउन नहीं करना, ऑपरेट करना है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एनालाइज करेंगे ना, ओके ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ खर्चा हाँ कम करो, वो करो, ये करो, देयर आर नंबर ऑफ रेमेडियल मेजर्स दैट दे कैन डू, राइट? हाँ सर, ओके, या तो ये हुआ प्रोड्यूसर्स का साइड, फर्म्स या प्रोड्यूसर्स. तो एवरीवन हैव सम और द अदर काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ओके? हाँ सर, या एंड टू कर्ब दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम सुनाई दिया कि अरे ऐसा कर देते हैं, नहीं नहीं, ऐसा करना जरूरी है क्या, ये भी देखना जरूरी है. गॉट इट? हाँ सर, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल पूछा कि आपका मार्केट में सेल कम हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपने बोला प्राइस कम करना चाहिए, डायरेक्टली आपने बोल दिया प्राइस कम करना चाहिए, करेक्ट? हाँ सर, बट यू हैव टू लुक इनटू द थिंग कि इज इट बिकॉज ऑफ प्राइस दे आर नॉट परचेजिंग? माइट बी देयर आर ओके, क्वालिटी इश्यूज, हाँ माइट बी सर, देयर आर सम अदर इश्यूज, कुछ ऑफर्स, जैसे कोई और ब्रांड होगा, उसका प्राइस आपके शैम्पू को जितना ही है, क्वालिटी भी वैसी है, बट कुछ और ऑफर मिलता होगा उसमें, हाँ सर, इसके लिए शायद वो लोग खरीदते हो. जैसे आजकल आता है ना, कोई चीज खरीदते तो पेटीएम का कैशबैक मिलता है, उसमें कोड हाँ रहता है, राइट? ये सब भी ऑफर्स रहेंगे. देखो, कस्टमर अल्टीमेटली द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग नेवर गोस, इट्स अ बर्थ राइट ऑफ अ हाँ सर, कस्टमर. गॉट इट? हाँ सर, अब आप 1 रुपए से कुछ खरीदने जा रहे हो, राइट? तो आप बोलो, हाँ सर, आपको सबसे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा ऐसा चीज ही आप खरीदोगे ना, हाँ, ऐसा नो? हाँ सर, Yes. So that is what every customer is trying to do. They compare what best I am getting in the market. They always go and explore for options, and the हाँ best सर, option is sought after. So if your product is of the same price of your competitor, if your product has the same quality as the competitor, still your sale is not increasing, that means there is some kind of lacking. हो सकता है वो एडवर्टाइजिंग ज्यादा करता हो, वो सलमान खान से एडवर्टाइजिंग करा रहा है, तो आपको अमिताभ बच्चन से करवाना ही पड़ेगा, ओके? हाँ सर, यस, देयर हैज टू बी सम वे आउट. सो यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि अरे कोई खरीद नहीं रहा है, प्राइस कम कर दो. प्राइस कम करोगे तो तुम्हारा खर्चा कहाँ से पे करोगे? हाँ सर, गेटिंग मी? प्राइस कम करना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता. हाँ सर, गॉट इट? हाँ, Yes, there are other n number of ways to do. Got it? हाँ सर, Yeah. चलो, let's move ahead. Just one moment. Yeah. Scope of microeconomics. Scope मैंने बताया था आपको, दायरा. हाँ सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लिमिट है, कौन सी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के कस्टडी में आता है, बरोबर? हाँ सर, और कौन सी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहुंच के बाहर है. बाहर है, ओके, या तो पहला मैंने हाँ उस दिन आपसे डिस्कस किया था, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने आपसे बात किया था, राइट? हाँ सर, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगा हाँ या सर, कम होगा? कम आएगा सर, कम हो जाएगा. यहीं पे हाँ सर, प्राइस बढ़ रहा है तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे कि कम करोगे? ज्यादा करेंगे, ज्यादा करोगे, क्योंकि देखो डिमांड हमेशा कंज्यूमर के नजर से सोचने का. जब मैं हाँ डिमांड की सर, बात करूँ ना, तो आप खुद को कंज्यूमर मान लेने का. एंड व्हेन हाँ आई सर, टॉक अबाउट सप्लाई, यू शुड थिंक दैट यू आर अ सेलर. गॉट इट? हाँ सर, सो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ रहा है, कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा क्या? नहीं, नहीं सर, कम खरीदेगा. वही अभी आप सेलर बन गए, हाँ, प्राइस बढ़ रहा है, आप ज्यादा बेचने का कोशिश करोगे कि कम? ज्यादा, ज्यादा. ऑब्वियसली आप ज्यादा बेचोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे. गॉट इट? हाँ यस. द सेकंड थिंग, फैक्टर प्राइसिंग, ये भी मैंने आपको बताया था. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और कैपिटल एंटरप्रेनर. हाँ, तो लैंड आपका खुद का है तो आप रेंट बचाओगे, लेकिन टैक्स पे करना पड़ेगा. हाँ सर, अगर आपका खुद का नहीं है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, राइट? अगेन रेंट हाँ सर, डिटरमाइन कैसे होता है? मैंने बताया था, रूरल एरिया में लैंड है तो रेंट कम रहेगा, बट बाकी के कम कॉस्ट बढ़ रहेगा, जाएंगे, बाकी के हाँ कॉस्ट सर, बढ़ जाएंगे, राइट? और
मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेगा तो रेंट ज्यादा रहेगा, बट ज्यादा बाकी के है, कॉस्ट आपके कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो ये सब आपका कम हो जाएगा ना। हाँ सर। ओके या जैसे मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने एक स्कूल ओपन किया, ओके हाँ एक सर। स्कूल आपने सिटी में ओपन किया, एक स्कूल आपने गांव साइड में ओपन किया। हाँ सर। अब सिटी में जो स्कूल ओपन किया सारे रिच स्टूडेंट्स रहेंगे, वो लोग खुद आ जा सकते हैं, खुद के सबके कार्स हैं, आपको कोई ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। वही आप मिनिमम है सर, रूरल एरिया, हाँ मिनिमम है सर। मिनिमम रहेगा या नेक्स्ट टू जीरो रहेगा, राइट? हाँ किसी को अगर हाँ पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए तो दे आर रेडी टू पे फॉर इट, गॉट इट। हाँ सर। हाँ यही आपने गांव में स्कूल खोला, अभी आप बोलो रूरल एरियाज में लोग एजुकेशन की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड है क्या? नहीं सर। नहीं, उनको जाके बोलना पड़ता है सीखो, एजुकेशन लो, ऐसा वैसा। स्कूल में आने के लिए धक्का मार के लेके आना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, राइट? वो लोग हाँ सर। मोटिवेट कब होंगे? आप देखना कभी रूरल साइड के स्कूल्स जाके, वहां पे वो लोग फूड फैसिलिटी देते हैं स्कूल में, हाँ सर। ओके स्कूल से खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि आपके घरों घरों से पिकअप करके आपको यहाँ ला के पढ़ाएंगे और वापस भी छोड़ेंगे। और ये सब ज्यादा कॉस्ट में कर सकते हैं क्या? हाँ सर। नहीं, कम नहीं फीस सर। रखना पड़ेगा ना। अगर फीस ज्यादा रहेगा तो वो लोग हाँ आएंगे ही नहीं, भले आप उनको क्या बोलते सर पे बिठा के लाने का वादा करो, तभी भी फीस ज्यादा रहेगा तो थोड़ी आएगा। दे आर रूरल हाँ पीपल, सर। दे कांट पे मच, करेक्ट? हाँ सर। ओके सो दैट इज रिलेटेड विद रेंट, वेजेस, ओके द क्वालिटी ऑफ वर्क यू रिक्वायर, कम वेजेस अनस्किल्ड लेबरर्स, ज्यादा वेजेस स्किल्ड लेबरर्स, गेटिंग मी? चलो भाई। हाँ सर। इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट चाहिए हाँ। तो बैंक्स, बट लोन पास होने में टाइम जाता है, करेक्ट? हाँ सर। ज्यादा इंटरेस्ट जल्दी से मिल जाता है, राइट? हाँ सर। कोई भी फाइनेंशियल नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे जल्दी लोन दे देता है। देखो बोलते डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, हम जल्दी लोन करा के देते हैं, बट इंटरेस्ट रेट वुड बी हाई, करेक्ट? हाँ सर। यस। वहीं आप बैंक, नेशनलाइज बैंक से लोन अप्लाई करो, देयर आर वेरियस फॉर्मेलिटीज, वो सब होने के बाद आपको लोन सैंक्शन होगा, करेक्ट? हाँ। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा रहता है, इट टेक्स टाइम, बट इंटरेस्ट रेट इज लेस। तो एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स। हाँ सर। हाँ, nothing in this world is easily achievable, okay? When you're gaining something, you सर आप क्या और? when interest rate you have to pay, means you will take more time हाँ to सर। get, correct? हाँ सर। Yeah, then profit, if you're doing business alone you will get all the profit, but you also have to bear all the losses, हाँ लेकिन सर। लॉस तो शेयर करेगा क्या? नहीं। नहीं, अकेले बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट पूरा आपका, बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ हुआ 19-20 तो लॉस भी पूरा आपका। आपका। वही पार्टनरशिप रहेंगी तो दोनों का मतलब इक्वली लॉस बटेगा। यस, ओके हाँ सर। या देन थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, सर आपकी ओवरऑल आवाज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रॉपरली ठीक है, नहीं आ रही है। क्या हुआ? आपकी आवाज हेलो, प्रॉपरली नहीं आ रही है। अभी 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 सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ सर। हाँ या इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या? मैंने उस दिन बताया था, एफिशिएंसी लाने से हम कॉस्ट कम कर सकती हैं, करेक्ट? हाँ सर। यस। तो इवन अभी देखो आपके कंपनी में सब प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, बट हाँ। फिर आप मतलब सेल प्रॉपरली हो रहा है, परचेज प्रॉपरली हो रहा है, एवरीथिंग इज प्रॉपर, स्टिल अभी हम सोचे अरे अभी क्या इंप्रूव कर सकते हैं? अभी भी इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी यानी जैसे प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है ना, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन जहाँ हाँ पे हो सर। रहा है वहां पे रॉ मटेरियल थोड़े बहुत वेस्ट हो रहे हैं, हाँ सर। गेटिंग मी? समझो आपका एक प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, प्लास्टिक इंडस्ट्री है। प्लास्टिक किस चीज से बनता है आपको पता है ना? प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स आते हैं, हाँ सर। ओके प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स आते हैं, उसको फर्नेस में डालते हैं, फर्नेस में डाल के वी मेल्ट इट एंड देन वी मोल्ड इट, सो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर मेड, ऐसा नो? हाँ सर। Yes. So when these laborers that are working in your factory, they are not efficiently using the raw material.
वो लोग जब प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बॉक्स में से निकाल के फर्नेस में डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा रहा है. ओके, हाँ यस. सो यू कैन इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी like हाँ giving सर some seminar or training. Okay, but believe me, seminar and trainings don't give proper effect. Then फिर क्या करते हैं मैनेजमेंट? हाँ सर They link the efficiency to their wages. हाँ समझ रहे हो? हाँ सर हाँ, फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर होता है. दैट सुपरवाइजर keeps a check on which employee is working how much efficiently. As per the efficiency वो लोग कुछ ratings वगैरह देते हैं, and depending on the ratings wages are paid. हाँ ग्रेड सर 1 एम्प्लॉइज, ग्रेड 2 एम्प्लॉइज, ग्रेड 3 एम्प्लॉइज, या फिर यू समझ लो स्किल, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. गेटिंग मी? हाँ सर या स्किल्ड एम्प्लॉइज आर वेरी एफिशिएंट, दे आर गेटिंग पर हावर इतना उनको वेजेस देंगे. सेमी स्किल्ड पर हावर थोड़ा कम रहेगा, अनस्किल्ड पर हावर हाँ और कम रहेगा. ओके, हाँ या. सो this is how efficiency in production is brought about. Then efficiency in consumption. Consumption means there are various things that a factory consumes while production process, correct? उनका हाँ consumption, उसमें efficiency लाना है. ये सब छोटी छोटी चीजें efficiency. If one day we save on at least 2 or 3 watts, okay, उतना यूनिट ऑफ एनर्जी हम हाँ सेव सर करते हैं अगर, तो ओवरऑल अ ईयर, एक पूरा ईयर का जब अपन देखो, आपने यू माइट हैव लर्न विद योर बीके प्रोफेसर कि हम सर आपकी आवाज़ सर yeah, हाँ sorry, I सर was getting a call on my phone. I was getting a हाँ call सर on my phone, that's why it got interrupted. ओके I'm sorry. Yeah, you might have learned in your bookkeeping and accountancy that the profit and loss account that we prepare, that is for the whole year, correct? हाँ सर Yes. So if one day you're saving at least 1 or 2 units of energy, or हाँ else सर 1 or 2 watts of energy, just calculate throughout the year how much you would be saving upon, correct? हाँ And saving is nothing but earning, correct? हाँ सर Yes or no? हाँ सर I'll give you a simple example. You watch cricket, correct? हाँ Uh, are fielders important in cricket? हाँ सर Why? तो They are not good batsmen, they are not bowling. Still, fielders are important. हाँ सर Why? बिकॉज सर वो मतलब They save runs. दे सेव द हाँ रन सेव करते हैं ना वो लोग. हाँ सर जहाँ पे बाउंड्री जाना रहता है वो लोग दाएं मार के पकड़ लेते हैं, तो वो 1 रन 2 रन में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट? तो दे आर सेविंग 2 runs, करेक्ट? हाँ सर यस. सो व्हेन दे आर सेविंग 2 runs, जब बैट्समैन बैटिंग करने उतरता है तो दे हैव टू स्कोर दैट मच लेस, करेक्ट? हाँ सर बरोबर ना? तो जो रन बचाया गया है वो रन इनडायरेक्टली उन्होंने बैटिंग ही किया ना, फील्डिंग करते करते उन्होंने बैटिंग कर लिया, करेक्ट? हाँ सर या. सो दैट्स व्हाई फील्डर्स एंड ऑलराउंडर्स आर इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट. गेटिंग मी? हाँ सर या. So when you efficiently manage your production, when you efficiently manage your consumption, the overall economic activity is also becoming efficient. समझे? ये third thing है, overall economic activity या overall ओके economic efficiency. Got it? हाँ सर Sorry, just a moment. Can I take 1 minute of yours? हाँ सर ના આવી રહી છે પણ
Yeah, Abdeli. हाँ सर. Let's proceed. Just a moment. Yes sir. Yeah, is the screen visible to you? Yes sir. Yes. So now the next thing that we'll be learning is features of microeconomics. Is this chart of scope of microeconomics clear to you? Yes sir. Yeah, we will be learning this in detail. हाँ, ये जो scope है, we will be learning it further. आगे है अपने को in detail. I just gave you a brief idea. Yeah. Now let us come to features of microeconomics. Features मतलब microeconomics का क्या feature है? जैसे when you go on to buy a phone, you see the features, ना? What is the हाँ sir. pixel of the camera? What is the screen resolution? What is the internal memory, RAM? Correct? हाँ sir. So even microeconomics has some features. Yes, Okay. the first feature is study of individual units. बराबर है. Microeconomics, what does it study? It studies individual units, ना? Unit. हाँ sir. Does it study overall? नहीं. नहीं, it studies individual in detail, part by part, inch by inch. Okay, हाँ sir. one thing at a time. That is what it studies. Correct? हाँ sir. Yes. So this is the first feature: study of individual units. Individual. Second, price theory. What is price theory? Sir, price determine मतलब individual. मतलब microeconomics always helps to solve the problems in any economic market that is related to price. Price. जैसे गुड्स का डिमांड कम क्यों है, हाँ. इसका रिलेशन प्राइस के साथ है कि नहीं? हाँ sir. Yes, so there are many theories, वो हम पढ़ेंगे आगे. Theory of law of demand, theory of law of supply, ये सब प्राइस से रिलेटेड है. Okay, so that we will be studying. Our next chapters are there of law of demand, law of supply. Okay. हाँ sir. Yeah, so mostly all the theories in microeconomics are related to price. So it is also Right. called price theory. Price Okay. theory. हाँ sir. Yeah, then the third. Just a हाँ moment. sir. Yeah, partial equilibrium. This I'll read out. You will be better able to understand when I read this. Equilibrium is a balance between two factors. बराबर है, equilibrium यानी क्या है? Factor. You have played seesaw when you were हाँ young. sir. Seesaw क्या है? एक उस तरफ कोई बैठता है और एक आप इस तरफ बैठते हो, करेक्ट? हाँ sir. वो ऊपर नीचे होता है. It is depending on the weight हाँ of the sir. people sitting at both the ends, correct? हाँ sir. Yes. If you are underweight and सामने जो बैठा है overweight है, तो आप उसको उठा पाओगे क्या? आप ही हमेशा हवा में रहोगे, correct? हाँ sir. Yes. So there should be an equilibrium. Equilibrium is nothing but where demand and price they are coming at a reasonable point. Okay? हाँ sir. Means जब आपका प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा तो आपका डिमांड कैसा होगा? बहुत कम. कम. आप कंज्यूमर हो, डिमांड की जब बात करते हैं we should always imagine that we are consumers. Okay? हाँ sir. Yes. So some product is very costly, your demand for that product will be very less or more? Less. Less. Take example of gold. Very costly, correct? हाँ sir. Do you buy gold every week, every month? नहीं sir. नहीं. Rarely on occasions, or if you want your family, if they are interested in doing some savings, correct? Only then we buy gold, correct? Yes. So अब समझो प्राइस थोड़ा कम हुआ. Just tell me, when price of gold reduces, demand increases or not? हाँ sir. It increases ना. People rush to the jewelry. अरे सोने का भाव कम हो गया, चल. ऐसा no? हाँ sir. Correct? Much more enthusiastic people are housewives. घर में मम्मी वगैरह जो ज्वेलरी में देखो पैसा डाल के रखते हैं, थोड़ा बहुत दागिने खरीद के रखते हैं. They are very alert when the price of gold drops. Okay? Yeah. So that is called elasticity. थोड़ा सा प्राइस कम हो गया कि डिमांड बहुत जल्दी से बढ़ जाता है. ऐसा ना? तो जब थोड़ा प्राइस कम हो जाता है और डिमांड बहुत जल्दी बढ़ जाता है, that is more elasticity. The demand is more elastic. We also have a chapter called elasticity and inelasticity of demand. Okay, in that we will learn with respect to price also and with respect to other aspects also. Okay. Yes. हाँ. So equilibrium आप समझ गए ना? जब कोई चीज equal level पे आता है, when price and demand it is coming at an equilibrium position.
position. There will be one flow chart which you will be able to see ahead. Okay, that I'll show you. Yeah. Then I'm reading this point ahead. Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit. Yani, if you draw a graph chart, you have prepared graph charts when you were in school. हाँ सर. ग्राफ में अपन चार्ट बनाते हैं ना, बार डायग्राम. हाँ सर. करेक्ट. या सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ ग्राफ में कौन से एक्सिस होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. राइट सर. हाँ सर. करेक्ट. यस. तो आप मुझे बताओ, व्हेन प्राइस इज 0 डिमांड विल बी इनफाइनाइट. हाँ सर. या व्हेन प्राइस इज 10 rupees डिमांड विल बी reducing a bit. हाँ. When price becomes 20, again demand will come down. Demand will come down. Yes. So on one side, when price is slowly and steadily increasing, on the other side, the demand is slowly and steadily decreasing. Got it? Decrease. हाँ सर. Yes. And at one point of time, there will be intersection. देखो हम when we are plotting points on the graph, correct? हाँ सर. एक ऐसा point आता ना when x axis के जो variables है और y axis के जो variables है, both of them get intersected. हाँ सर. क्रॉस करते एक दूसरे को. हाँ सर. Yes, that point is called equilibrium point. Got it? Fine. हाँ सर. Yeah. चलो. The last point that we will learn is it isolates an individual unit. I'm reading the last sentence in that point. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. So at equilibrium, demand is at a very perfect position with respect to the price prevailing in the market. समझे? हाँ सर. जो मार्केट में कोई चीज का प्राइस है वो रीजनेबल पोजीशन पे आ जाता है. At that time, the demand is at a strong position. Got it? Strong position. Yes. That is the accurate and average demand that a product can have. With respect to the best price you are offering for your product. आप एक seller हो, आप आपके प्रोडक्ट को एक बेस्ट प्राइस जब रख रहे हो, तब जो मार्केट में डिमांड सिचुएशन क्रिएट होता है. Okay. Understanding? Yeah. चलो let's move to the next point, that is based on certain assumptions. Certain assumptions से क्या मतलब है? Assumptions का मतलब assume करना, कुछ चीजें assume करने. मतलब देखो, if you are planning, जब हम प्लान करते तो अपन ऐसे सोचते हैं ना, मान ले ऐसा हुआ, मान ले वैसा हुआ. We say it in this manner, correct? हाँ सर. हाँ. If you are planning to start a business, तो you sometimes assume ना, कम से कम इतना तो डिमांड आएगा, कम से कम उतना तो हो जाएगा. करेक्ट? हाँ. The estimation that you're making, okay, something related to that is called assumptions. So so some theories in microeconomics, it is based on assumptions. हाँ सर. मतलब मान के चलना पड़ता है कि सिचुएशन ऐसा रहेगा, बट इन फैक्ट, इन एक्चुअलिटी, आप बोलो जो सिचुएशन हम फोरकास्ट करके चलते हैं, इज द रियल सिचुएशन गोइंग टू हैपन दैट वे? नहीं सर. नहीं, situations can change. Okay? Change. Yes. So microeconomic theories are based on assumptions. And assumptions most of the time are vague. Vague in the sense, for example, I'll give you an example. Your product is having price 5 rupees. Okay? Yeah, and the demand is of 100 units. Correct? हाँ, आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 5 rupees and your demand is 100 units. 100 units. अब आपका प्रोडक्ट का प्राइस आपने 4 rupees किया, डिमांड 100 से ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए. बट मैं बोलता हूँ आपने प्राइस किया 4, आपका प्रोडक्ट का डिमांड 100 से 98 पे 95 पे आ गया. ऐसा क्यों हुआ? जबकि थियरी ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? थियरी ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस reduces, demand increases. Correct? Increases. हाँ सर. Whereas आपके सिचुएशन में प्राइस reduces, demand also reduced. Why did this happen? Because there are certain other conditions also. Okay? Those conditions, yeah, those factors are like choice of the customer. Even customers make assumptions. His product was costing 5 rupees till yesterday. He reduced the cost to 4 rupees.
there is a problem, might be there is a problem with quality, that's why he's selling at low price. हाँ might be ये expiry के नजदीक आया है goods, इसके लिए ये जल्दी जल्दी निकाल रहा है. सर बेच रहा है. Okay, ये इंट्यूशन जा सकता है ना कस्टमर्स के माइंड पे. हाँ सर. Okay, so always when you're offering some discounts and all, it should be properly put up, else those price strategies will backfire. Getting me? हाँ सर. Yes. So microeconomic study के हिसाब से जो theories है ना, those are Okay. based on assumptions. Okay. In reality, such theories are not always practical. Okay. Practical. Yeah. हाँ सर. In actual world, such theories are not always practically Practical. successful. Getting me? हाँ सर. Yes. इसके लिए ये थर्ड पॉइंट दिया, सॉरी फोर्थ पॉइंट दिया बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. जैसे यहाँ पे कुछ बोले, देखो ceteris paribus such as perfect competition, then laissez-faire policy, हाँ सर. प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि सिचुएशन ऐसा रहेगा, हाँ सर. सिचुएशन वैसा रहेगा, तो आपने जो प्लान किया दैट विल हैपन, बट देयर इज नो हाँ. गारंटी दैट सिचुएशन क्या विल रिमेन. situation remain constant. Yes, there are 99% chances situation will change. Only 1% possibility is your plan will succeed. Successful. Yes. The next characteristic is slicing method. Slicing मतलब slice. Size. A whole mango. Mango के टुकड़े को slice बोलते हैं ना. हाँ सर. हाँ, सेम वे एक पूरे इकोनॉमी को हम जब ओवरऑल स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? Size. मैक्रो इकोनॉमिक्स, करेक्ट? Microeconomics. हाँ. हाँ, लेकिन जब पूरे इकोनॉमी को मैं काट के उसका 1 by 1 स्टडी कर रहा हूँ, हर एक स्लाइस का मैं 1 by 1 स्टडी कर रहा हूँ, हाँ सर. दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. गॉट इट? Microeconomics. या सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, इसके नाम याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इट इज आल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल स्टडी, इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइसिंग मेथड. ओके, हाँ सर. हाँ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, टर्म्स है, हाँ you सर. should keep in mind. You can get a question in your exam. Microeconomic study is also called slicing method. Explain. हाँ. So you should write this paragraph. Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units. Small individual units. Okay, and each individual unit is studied separately. That's why it is also called slicing method. Got it? This you have to write Okay. point wise. Understood? Yes. So you हाँ. should be aware of this terminologies. Keep it in mind. You should note down. Microeconomics is also called as microscopic study. It is also called as study of individual units. It is also called as slicing method. Okay. Slicing method. हाँ, ये सारे sentences का एक ही मतलब है. हाँ सर. Next, use of marginalism principle. Marginalism. What is marginalism? नहीं पता. See, it is written over there. The concept of marginalism means change brought in total by economic models. Margin. What is the increase? For example, अपन आपका वही लास्ट एग्जांपल पे आता है. योर प्रोडक्ट इज कॉस्टिंग 5 रुपीज. हाँ जब सर. 5 रुपीज था तभी डिमांड कितना था? 100. 100 यूनिट्स, करेक्ट? हाँ सर. अभी अपन थियरी ऑफ डिमांड के हिसाब से जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को छोड़ देते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थियरी के हिसाब से जाते हैं. हाँ आपने प्राइस कम कर दिया, आपने किया 4. ओके, सर. तो योर डिमांड इंक्रीज्ड टू 100 से 120 यूनिट्स हो गया. हाँ सर. तो मार्जिन क्या है? सर मार्जिन 20 यूनिट्स का मार्जिन है ना. हाँ 20 यूनिट बढ़ गए ना. बढ़ गए. हाँ सर. Yes. So this is also studied in microeconomics. When you are reducing price by 1 rupee, हाँ सर. वो 1 रुपी कम होने की वजह से रेस्पॉन्स क्या मिला? आपका डिमांड 20 20 यूनिट से बढ़ गया, राइट? बढ़ गया. हाँ सर. Yes. So you could study that properly. हाँ सर. है कि नहीं? You could study it properly. When I reduced 1 rupee in my product per unit, the demand increased 20 units. हाँ सर. That means per 1 rupee decrease in my product will lead to increase of 20 units. 20 units. हाँ, तो अगर आप एक और रुपया कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 140. 140. So are you able to judge हाँ the सर. margin? हाँ सर. आप मार्जिन को जज कर पा रहे हो? हाँ सर.
Yes, that is called use of marginalism principle. Getting me? हाँ सर. Yes, this thing you will be able to judge in microeconomics. Next topic is business decisions. See, when you investigate into some economic problems in detail, obviously हाँ सर. you will get to know na what is the cause of that problem, and if you know the cause of the problem, you will be able to take solutions, bring solutions also, correct? And solution मतलब क्या, कोई decision लेना पड़ेगा ना आपको. हाँ सर. ऐसा no, solution means what, अरे ये problem है, इसका ये reason है, तो you will take some decision कि वो reason वापस नहीं होना चाहिए, correct? हाँ. Yes, so microeconomic study will help you to take business decisions. Got it? हाँ सर. Yes. इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. Understood? हाँ सर. Yes. कितना रखना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है कि कम करना है, मुझे प्रोडक्शन का कॉस्ट कम करना है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है. मैंने आपको बताया था, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस. हाँ. बरोबर है. आपको कोई चीज बनाने को 10 रुपीज लग रहा है, आप सेल कर रहे हो 20 में, तो आपका प्रॉफिट है 10 रुपीज, करेक्ट? हाँ. अभी आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, तो या तो आप 20 रुपीज वाले प्रोडक्ट का प्राइस 30 करोगे, तभी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या फिर आप वही 20 रुपीज वाले प्रोडक्ट को 20 में ही बेचोगे, लेकिन आप आपका कॉस्ट को 10 के जगह 7 रुपीज में ला रहे हो, तभी भी आपका प्रॉफिट बढ़ गया ना, 13 रुपीज हो गया ना प्रॉफिट. यस, आइदर यू हैव टू रिड्यूस कॉस्ट और यू हैव टू इंक्रीज selling price. Okay, yeah. So these are the decisions that you will be able to make when you do microeconomic study of anything, any economic problem. When you microscopically study it, you will be able to take such decisions. Next, useful to government. Even government is using such policies, yes or no? You tell me, market में inflation बढ़ रहा है. Inflation means what? Prices of goods and services rise. Prices rise होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, महंगा हो रहा है सब. महंगा हो रहा है तो यू टेल, डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. कम. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा? सर सारे सर कम होगा. डिमांड कम होगा लेकिन सप्लाई बढ़ेगा, राइट? हाँ सर. देखो, बिजनेसमैन को इन्फ्लेशन अच्छा लगता है कि डिप्रेशन अच्छा लगता है, आप बोलो. बिजनेसमैन को इन्फ्लेशन. हाँ, बिजनेसमैन को इन्फ्लेशन अच्छा लगता है. चीजें महंगा हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने का ट्राई करेगा. क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, करेक्ट? हाँ सर. बट चीजें जब महंगा होता है तो ग्राहक, कस्टमर, कंज्यूमर, दे विल स्टार्ट टू बाय लेस. ओके, और जब डिमांड गिरते जाएगा तो एक तरफ सप्लाई बढ़ रहा है, दूसरे तरफ डिमांड गिर रहा है, तो फिर आप बोलो सप्लायर्स को प्राइस कम करना पड़ेगा. हाँ सर. ऑब्वियसली सप्लायर्स को प्राइस कम करना ही पड़ेगा, तभी तो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेगा. ओके, सो ये इन्फ्लेशन ब्रेक हो रही है. हेलो, आर यू एबल टू हियर? हेलो अब्दी अली. हेलो सर. हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर. हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, टुडे आई एम यूजिंग माय मोबाइल डेटा. आई एम सॉरी. ओके, व्हेन आई यूज्ड टू बी एट माय होम, नेट वाज देयर. टुडे आई एम यूजिंग माय मोबाइल डेटा. हाँ सर. ओके, हाँ. चलो, इज इट ऑडिबल टू यू एट लीस्ट अ बिट? या, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर इन्फ्लेशन बढ़ते गया तो ऑटोमेटिकली उसके बाद डिफ्लेशन आता ही है. ओके. हाँ सर. हाँ, and when deflation is not coming, that is prices are not reducing, then government takes certain measures. Okay. हाँ सर. गवर्नमेंट मेजर्स क्या लेता है? गवर्नमेंट आरबीआई को बोलता है लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो. लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा? अभी आजकल जो भी लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, आपको मालूम है, ईएमआई पे खरीदते हैं, राइट? हाँ सर. अगर ईएमआई पे इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो वो लोग खरीदेंगे क्या? नहीं सर. खरीदना कम कर देंगे, मतलब डिमांड कम हो जाएगा. हाँ सर. डिमांड कम हुआ तो सप्लायर्स को भी प्राइस कम करना पड़ेगा ना. हाँ. अंडरस्टूड? गवर्नमेंट कैसा यूज करता है?
माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी को? हाँ सर। यस। देन नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स उसमें मैंने बताया था आपको, देखो थियरी ऑफ एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी हाँ सर। efficiency in production, efficiency in consumption, कंजम्पशन। overall economic efficiency, हाँ सर। उसको ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वेलफेयर मतलब चीजों को ऑप्टिमम वे में यूज करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज कम करो, बचत करो, सेविंग्स करो, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो। इससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। जैसे देखो मैं प्लास्टिक बना रहा हूँ, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का, ग्रैन्यूल से हाँ। एक बॉक्स से एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं हाँ सर। अच्छे से नहीं यूज करूंगा, मेरे एम्प्लॉयज उसको वेस्ट करेंगे, तो वो एक बॉक्स की जगह 1.5 बॉक्स 2 बॉक्स लग जाएगा ना एक प्रोडक्ट बनने में। हाँ सर। सुनो वेस्टेज हो रहा है ना, वही अगर मैं हाँ। उनको प्रॉपरली यूज करने बोलूं तो एक बॉक्स में हो जाएगा। हाँ। जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तभी जो एम्प्लॉयज थे ना, ट्रेन नहीं थे, एफिशिएंट नहीं थे, बट धीरे धीरे हाँ। काम करते करते एफिशिएंसी आना चाहिए ना उनमें, हाँ सर। बट वो एफिशिएंसी आ ही नहीं रहा, वो लोग वेस्ट करते जा रहे। तो मैं मेरा सेल्स भी हो रहा है, डिमांड भी अच्छा है, बट फिर मैं प्रॉफिट हाँ। को कैसे बढ़ा सकता हूँ? सेविंग्स करके। और सेविंग्स कैसे सेविंग्स होगा? करके। एफिशिएंसी बढ़ा के। गॉट इट? हाँ सर। यस, ये समझा आपको? हाँ सर। चलो अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, अपना अभी तक क्या क्या पढ़ के हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, फीचर, उसका मीनिंग, मीनिंग, उसका डेफिनेशन, फीचर, डेफिनेशन, फीचर। डेफिनेशन फिर फीचर्स। हाँ सर। डन? हाँ, हाँ अभी सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स। हाँ। ओके? हाँ सर। चलो तब तक ये सब याद करना, मैं आपको ये पीडीएफ भेजता हूँ। ओके? हाँ सर। चलो, थैंक यू, बाय सर। बाय।